يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نشاد شریف ہوں، ارسلان۔ میں تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیول 3 کی، اینڈ آئی ایم اے ٹیم لیڈر فار لیول 1۔ الحمدللہ آئی ایم اے پارٹ آف ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیم in Darul Arqam Online Academy, or I am a certified Java therapist. Alhamdulillah. I welcome you all for this session of Talim al-Quran ka introduction session, and I am really very happy to see you all here present. Jazakallahu khairan everyone for joining this session. Alhamdulillah, alhamdulillah, we all are chosen one. اینڈ اللہ نے ہم سب کو چن لیا ہے اس محفل میں شامل ہونے کے لیے۔ اس میں ہم دارالارقم آن لائن اکیڈمی کی تعلیم القرآن کے کورس کے بارے میں تھوڑے ڈیٹیلز شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم سنیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت، تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ہدایت ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کتاب نازل کیا ہم نے، اس کو بابرکت ہے، تو اتباع کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے ہمارے لیے بابرکت ہے، تو اتباع کرو۔ اتباع مینس فالو۔ ہم ایک قرآن کو فالو کرنا ہے، اور ہم کیسے کریں گے فالو قرآن کو؟ جب تک ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے ہمارے لیے۔ اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے جو ہم اللہ کے محبت میں نیک کام کرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نیک کام کیا ہے اور جو کام ہم کریں گے وہ گناہ کیا ہے؟ ہم کو اس کو پتا کرنے کے لیے we have to understand what is exactly in Quran۔ ایگزامپل سے بتانا چاہ رہی ہوں، آپ کے پاس ایک روڈ میپ دیا گیا ہے and your destination is جنہ انشاءاللہ۔ اب آپ کو وہ روڈ میپ فالو کرتے ہوئے جنہ کی طرف جانا ہے، لیکن اب وہ روڈ میپ ہمارے لیے ہے وہ قرآن ہے، لیکن ہم کو پتا ہی نہیں ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا احکامات ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیا ہمیں نہیں کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچیں، اور ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرنا ہے۔ تو ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ وہ روڈ میپ کو ہمیں ڈیکوڈ کرنا ہے۔ ہاؤ شوڈ وی ڈیکوڈ اٹ؟ تو ہم کو یہ قرآن جب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، تو ہم ڈیفینیٹلی پتا کر سکیں گے کہ ہم کیسے اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر، وہ دب گیا ہوتا اور پھٹ گیا ہوتا اللہ تعالی کی خشیت سے ڈر کر۔ اب ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، کیا یہ قرآن ہمارے دل پر کچھ اثر کر رہا ہے؟ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ دب گیا ہوتا، پھٹ گیا ہوتا، ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا، لیکن ہمیں کیوں نہیں اثر کر رہا ہے؟ ہم پر کیوں اثر نہیں کر رہا ہے قرآن؟ الحمدللہ ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہر ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں لکھی ہیں، تو ہم ایسے ہی پڑھیں گے تو بھی ہمارے لیے نیکی ہی ہے۔ لیکن وہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے، جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اسے سمجھ پا رہے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے؟ کیا وہ قرآن
جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دل پر ایسا اثر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیک کام کرنے کے لیے ہم راضی ہو رہے ہیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہم گناہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، ہم پر وہ دل پر ہمارے اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھ کر ہی نہیں پڑھ رہے، ہم بس ایسے ہی قرآن عربک ٹیکسٹ میں جو ہے وہ فالو کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، غور کیجیے اس بات پر کہ ہم کو یہ قرآن سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرض ہے۔ اب علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ آپ نوٹ کریے، فرض ہے، اٹ از ناٹ آپشنل، اٹ از obligatory، اٹ از مینڈیٹری۔ تو ہمیں اس فرض کو کیسے پورا کریں گے؟ ہم علم حاصل کرنا ایسے ہی سمجھیں کہ اٹ از ناٹ مائی کپ آف ٹی، اٹ از ناٹ فار us، یہ علم حاصل کرنا عالموں کا کام ہے، یہ ایسے ہم سمجھ کر ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ وی ڈونٹ نو دا امپورٹینس، ہم کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ فرض ہے۔ ہمیں اس پر ڈیفینیٹلی غور و فکر کرنا ہے کہ یہ ایک فرض ہے کہ ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے قرآن کا علم حاصل کرنا۔ اور ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف۔ اب قرآن ہمارے حق میں گواہی دیتا ہے یا ہمارے خلاف، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ہم اگر قرآن کو پکڑیں گے، اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اسے آگے پہنچائیں گے، اسے عمل میں لے کر آئیں گے، تو ہی قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا قیامت کے دن۔ اور ہم سب ایسے ہی سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم سب جنتی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سفارش کس کی ہوگی وہ ہمیں سوچنا ہے۔ اگر میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو، کہ اگر آپ ایک ہاسپٹل میں ایک ایسے پوزیشن پہ ہیں جہاں پر آپ کی چلتی ہے، یعنی اور CEO پوزیشن، یا پھر آپ کے ریکمنڈیشن سے کوئی بھی آپ ایک ریکمنڈیشن سے کوئی بھی کسی کو بھی جاب مل سکتی ہے، تو آپ کس کو ریکمینڈ کریں گے؟ ایک ڈاکٹر کے پوسٹ کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کے پوسٹ کے لیے ڈیفینیٹلی آپ ایک ڈاکٹر کو ہی ریکمینڈ کریں گے نا، یو ول ناٹ ریکمینڈ این انجینئر یا پھر الیکٹریشین یا پھر ایک کوئی اور ٹیلر ہے یا پھر کوئی اور دوسرے کام میں ماہر ہے، اس کو آپ نہیں ریکمینڈ کر سکتے، اور وہ ریکمینڈیشن ایکسپٹ بھی نہیں ہوگی۔ کیسے ایکسپٹ ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ایک ڈاکٹر ہی ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ تو یہ جو سفارش کا کرائیٹیریا ہے، ہم سب اب ٹیکن فور گرانٹیڈ لے لیے ہیں کہ ہم سب کی سفارش ہو جائے گی۔ نہیں، ہم سب کی سفارش نہیں ہوگی جب تک ہم وہ کرائیٹیریا پر نہیں کھرے اترتے۔ ہمارا کرائیٹیریا وہی ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، جو علم حاصل کر کر ہم پر اس پر عمل کرنا ہے، اور جب ہم وہ کرائیٹیریا میں فٹ ہوں گے تبھی ہماری سفارش ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں سمجھنے کے لیے کہ ہم قرآن کیسے سیکھیں گے، کیسے سمجھیں گے اور کیسے آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ سب کو دارالارقم آن لائن اکیڈمی کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، جو ایک کورس کنڈکٹ کر رہے ہیں تعلیم القرآن۔ آپ نے سب سنا ہوگا دارالارقم آن لائن اکیڈمی کے بارے میں۔ اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ استاذہ سارا ہیں، ان کے کوالیفیکیشن کے بارے میں تھوڑا میں بات کرنا چاہوں گی۔ وہ ایک MA and B.Ed کرے ہوئے ہیں، بیچلرز ان آلٹرنیٹو میڈیسن، سرٹیفائڈ ہجامہ تھراپسٹ ہیں، ہربلسٹ ہیں، طب نبوی پریکٹیشنر ہیں، اینڈ شی از کرنٹلی ورکنگ آن ٹریڈیشنل میڈیسن۔ ان کے اسلامک کوالیفیکیشنز ہیں، شی از ڈن بیچلر ان اسلامک اسٹڈیز، وہ تعلیم القرآن گریجویٹ ہیں، تجوید گریجویٹ ہیں، ویریس ڈپلوماز فرام لوکل اینڈ آن لائن اسکولز اینڈ ٹیچنگ تفسیر اینڈ اسلامک کورسز فار مور دین 14 years الحمدللہ۔ تو دارالارقم آن لائن اکیڈمی کے پریزیڈنٹ استاذہ سارا ہیں، جو یہ کورس کنڈکٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیکچرز فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس میں جوائن کریں گے۔ تعلیم القرآن کیا ہے؟
तालीम कुरान इज बेसिकली अ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, उसमें सीखेंगे और डिटेल तफसीर ऑफ कुरान रहेगी उसमें। बेसिक फिक्ह सीरा टॉपिक्स भी कवर्ड होंगे इंशाल्लाह। एक्सेस टू पर्सनल पोर्टल, आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तालीम कुरान में तो आपको एक पर्सनल पोर्टल का एक्सेस मिलेगा जहां पर आपकी एक्सक्लूसिव आईडी होगी, आपकी पासवर्ड होगी। तो उस पोर्टल पर ऑल लेक्चर्स विल बी देयर और आपके क्विजेस होंगे वहां पर टाइम टू टाइम, और उसमें आपका असेसमेंट होगा इंशाल्लाह। और you will be, after finishing each juz, you will have a final examination also which is certified, alhamdulillah. There are 6 levels in Talim al-Quran. हर level में there are 5 juz. One level is, each level की registration is 3,500 Indian rupees. अब हर लेवल में कैसा होगा, हर जुज के बाद एक एग्जाम होगा विद सर्टिफिकेशन, और हर लेवल के बाद भी लेवल का एग्जाम होगा इंशाअल्लाह ताला। तो और आपको और एक बेनिफिट मिलती है तालीम कुरान के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को, वो टीम्स में डिवाइड किए जाएंगे और उनके टीम लीडर्स असाइन किए जाएंगे जो आपको हर मुमकिन तरह से हेल्प करेंगे इंशाल्लाह टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड टू मेक योर जर्नी इजी इंशाल्लाह ताला। जो तालीम कुरान के जो भी आपके पोर्टल का एक्सेस नहीं चल रहा है, या फिर आप यू आर फेसिंग एनी इश्यूज, या आपके कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए नहीं हो रहा है, आपको शेड्यूलिंग का जो भी आपको हेल्प चाहिए, योर टीम लीडर्स विल बी देयर 24/7। आई एम टेलिंग यू, अल्हम्दुलिल्लाह विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे। तो प्लीज रजिस्टर करवाइए तालीम कुरान में, और इस कुरान को समझने के लिए, जो अल्लाह का कलाम है, जो हमारे लिए भेजा गया है, हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है, उसको पढ़ें, समझें, और इसमें क्या है वो हमको समझने की जरूरत है। इट इज फर्ज, अब जैसे हमने हदीस में देखा, इट इज फर्ज ऑन एवरीबडी टू यू हैव टू डू इट। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर पेइंग द रजिस्ट्रेशन फी। इंशाअल्लाह ताला आपको ये एक्सेस दिया जाएगा। ये गूगल पे नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना है, और ये अकाउंट डिटेल्स हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर। आई विल मैसेज इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो इंशाअल्लाह, ताकि आप सब इमीडिएटली रजिस्टर करवाएं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली यू हैव कम here to gain something very good. You're chosen one. Alhamdulillah, you're chosen from Allah to join this course. Allah ने आपको ये रास्ता दिखाया है, तो आप इस पर अमल करिए और ये कुरान को समझिए जो हमने सिर्फ रमजान में उठाया, सिर्फ पढ़े, ऐसे ही रख दिए और उसे सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसे हम समझ नहीं रहे हैं, उसका जैसा असर हमारे ऊपर होना है वो नहीं हो रहा है। तो उस पर हमको गौर करना है और हमारे जिंदगी में कुरान को शामिल कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे तालिम कुरान के कुछ स्टूडेंट्स को जो शेयर करेंगे इंशाअल्लाह अपना एक्सपीरियंस। तस्मिया, आप शेयर करिए आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तस्मिया खान है, मैं लेवल 2 से हूँ और मैं जूस 10 मेरा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जूस 10 में हर आयत में या तो वार्निंग है या खुशखबरी है या नसीहत है। ऐसी ही एक खुशखबरी है अल्लाह ताला दे रहे हैं जूस 2 में आयत नंबर 143 में, और इसी तरह हमने बनाया तुमको एक उम्मत वसत। ना जाने हम कितने बार पढ़े आयत, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला इसमें हमें ही बोल रहे हैं उम्मत वसत यानी अफजल यानी बेहतरीन उम्मत। अल्लाह ताला ने इस आयत में हमको एक शर्फ अता किए हैं बेहतरीन उम्मत का, यानी उम्मत मोहम्मद को, यानी हमें। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को हम तक पहुंचाया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे हमको पढ़ के समझ के आगे पहुंचाना है। ऐसे ही जैसे नॉर्मल एक थे ना, तो जिम्मेदारी ऐसे ही पढ़ के आगे पहुंचाना सोचते थे, लेकिन इसमें अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ये उम्मत वसत की जिम्मेदारी है कि आगे पहुंचाना है करके, यानी ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें अता की है इसको आगे पहुंचाने की। और उम्मत वसत का और एक मतलब है कि
اس کا مطلب ماڈریٹ کے بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ کے سنیاس لے لو کر کے، یا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ حرام میں ملوث ہو جاؤ لمٹ کراس کر کے، یا دنیا ایک ہی بار ملتی ہے کر کے، ایسا بھی نہیں کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے کیسے دنیا میں زندگی گزارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں بتائے ہیں. اور یہ زندگی ایک جرنی ہے ہمارے لیے، یعنی فرام اللہ ٹو اللہ ہے. اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہمیں قرآن پڑھ کے ہی معلوم ہوگا. پہلے کے صحابہ یا ان کے جو نسل چلے، ان کو جیسے ہی قرآن پڑھتے تھے ان کو سمجھ آ جاتا تھا، کیونکہ ان کا لینگویج ہی عربک ہے. لیکن ہماری لینگویج عربک نہیں ہے، اسے ہمیں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اور یہ دارالارقم ایک بہترین پلیٹ فارم ہے سیکھنے کے لیے. اس میں ایک آیت بھی ہمارے استاذہ سارا نے کھول کر اور سمپل ورڈز میں بیان کیا ہے. الحمدللہ میں یہ ایک لائف چینجنگ کورس ہے، اور اس میں لائف چینج ہوئی ہے ہماری سب کی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. نشاط جزاک اللہ خیر. تسمیہ آپ شیئر کریں آپ کا ایکسپیرینس، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ لائک ہاؤ ڈیڈ یو مینج یور ٹائم؟ آپ کیسے مینج کیا اپنا ٹائم؟ کتنا ٹائم نکالے آپ ہر دن کرنے کے لیے؟ الحمدللہ ایسا نہیں کہ مطلب اس کے پیچھے ہی پڑھنا ہے، اس کے ایسا ٹائم نہیں ہے. مطلب جب ہمارا فری ٹائم رہتا نا، اس میں تھوڑا وقت ہی نکالنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اور سارا باجی نے تو ایسے سمجھایا ہے کہ اتنا سمپل ورڈز میں سمجھ آ جاتا ہے سب کچھ. اور الحمدللہ اسے زیادہ وقت نہیں دینا ہے، صرف تھوڑا وقت ہی. دنیا مطلب 24 آورس میں صرف آدھا گھنٹہ دے تو بھی اس میں مطلب پورا سمجھ آ جائے گا، اور آدھا گھنٹہ ہی کافی ہے اس کے لیے. جزاک اللہ خیر تسمیہ for sharing your experience. جی شہباز آپ شیئر کر سکتے ہیں ابھی؟ ہاں آ رہی آواز نشاط؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج آپ سب نے اس میٹنگ کو اپنے پریزنس سے جو رونق بخشی ہے، اس کے لیے میں اپنے گروپ کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین مانیے سسٹرس، آپ کا یہاں آنا اور اپنا قیمتی وقت اس محفل کو دینا رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ ایسی محفلیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مقبول تر ہوتی ہیں جس میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے. یہی محفلیں انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری بخشش کا باعث بنتی ہے. اب میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھے پوائنٹ پر آتی ہوں. میرا نام شہباز پرویز ہے اور میں دارالارقم آن لائن اکیڈمی سے تعلیم القرآن کے 3 لیولز کمپلیٹ کر لیے ہیں الحمدللہ. تعلیم القرآن کے 6 لیولز کے کورس میں 3 لیولز میں نے اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل کرتے ہوئے 15 جز کی تفسیر اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو سیکھنے کے عمل کو پورا کر لیا ہے. اور یقین مانیے بہنوں، اس دوران میں نے جو روحانی سکون پایا ہے وہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے. میں نے جب کورس جوائن کیا تھا تو اپنی خوشی سے نہیں بلکہ اپنی بہن کے فورس کرنے پر جوائن کیا تھا. اس وقت یہ کورس پیڈ نہیں تھا اور نہ ہی سب گروپس لیڈرز کا یہ پیٹرن تھا. جسٹ لسنرز گروپ کی طرح ہمیں اپنے طور پر ہی آگے بڑھنا ہوتا تھا. اس وقت صرف میں تفسیر پر ہی کانسنٹریٹ کرتی تھی. ٹرانسلیشن کے نام سے ہی میرے کو چکر شروع ہو جاتی تھی. یقین جانیے جب بھی میری بہن کے فورس کرنے پر ٹرانسلیشن میں پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر یہ اسٹرانگ فیلنگ رہتی نا کہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے اس کے گرامر کو سمجھنا ضروری ہے. یہی اس کے گرامر کو سمجھنا ضروری ہوتا تو یہی حال میرا بھی تھا. یعنی میں ٹرانسلیشن فوبیا میں گرفتار تھی اس وقت کہ ٹرانسلیشن مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن یقین مانیے استاذہ سارا نے ہمارے اس ٹرانسلیشن کو سیکھنے کے عمل کو ہمارے لیے اتنا ایزی کر دیا ہے کہ ہم ایک فن وے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز سیکھ جائیں گے. جب آپ اس کورس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اس کورس کو آپ کریں گے، تبھی آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. کیونکہ سمندر کے کنارے ٹھہر کر سمندر کی گہرائی کو ناپنا جتنا مشکل ہوتا، اور پھر وہ جو ٹرینر ہوتا ان بھی اگر آپ کو کتنے اچھے سے سمجھائے بھی تو آپ کو وہ چیز اسی وقت سمجھ میں آتی جب کہ آپ سمندر میں اتریں گے. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے، ایک ایسی روحانی تسکین ہے. اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ الفاظ میں بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. تو آپ لوگ اس کورس کو
ज़रूर ज्वाइन करिए, इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर जो है सो फ़ायदा उठाइए। उस्तादा उमसारा ने जिस तरह सिस्टमैटिक अंदाज में सब ग्रुप बनाए हैं, लीडर्स का इंतज़ाम किया है, तो इनफरादी तौर पर हम जब कोई काम करते हैं तो उससे हमें उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि इज्तिमाई तौर पर सीखने में हमको फ़ायदा होता है। और हम सब जानते हैं कि दीन का काम जब इज्तिमाई तौर पर किया जाता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी अता करते हैं और उसको कामयाबी से आगे भी बढ़ाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा ग्रुप लीडर राहिला के तहत आगे बढ़ रहा है और हम कामयाबी के साथ अपने टास्क पूरे कर रहे हैं। जब मैंने ट्रांसलेशन सीखना स्टार्ट किया था, तफसीर सीखना स्टार्ट किया था, तो मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट अपने लिए मख्तस किया था, यानी दिन भर में सिर्फ 15 मिनट, उससे ज्यादा मतलब स्टार्टिंग पीरियड में ज्यादा अपन बैठना नहीं, तबीयत बैठना भी नहीं चाहती, अपन कम पढ़ें लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो वो थोड़ी देर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो ये चीज को मैं अपनाते हुए क्या करी, सिर्फ 15 मिनट से स्टार्ट करी ट्रांसलेशन। जब आहिस्ता आहिस्ता मैं 30 मिनट्स तक आई, फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई तो खुद ब खुद इंटरेस्ट लेवल बढ़ता गया और फिर अब आज हाल ऐसा है कि जब भी मेरे को टाइम मिलता मैं ट्रांसलेशन ले लेके बैठ जाती। तो तफसीर का तो कोई मसला नहीं है, आप अपने घर के काम करते हुए भी तफसीर के वीडियो सुन सकते, जब भी फुर्सत मिले मेन पॉइंट्स नोट कर सकते। बार बार सुनने से तफसीर जब आप बार बार सुनेंगे तो ट्रांसलेशन में आपको इजी होता, कुछ भी मुश्किल नहीं है सिस्टर्स। रिपीटेड वर्ड्स हैं, रिपीटेड सेंटेंसेस हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है दीन आसान है, तो फिर इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सच में कुरान का समझना और कुरान का सीखना बेहद आसान है, बशर्ते कि हम इखलास के साथ इस पर काम करें, डेली बेसिस पर काम करें, आखिरत में अजर का बास समझकर काम करें। अल्लाह ताला हमें इस काम के बदले बेहद हिसाब अजर देगा, ये सोचकर काम करें। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ आसान होता जाएगा। मेरी बहनों, आगे आइए और इस कोर्स में पार्टिसिपेट कीजिए। इस कोर्स को आप जो है सो यानी बहुत सारे सिस्टर्स लिसनर्स को प्रिफर करते हैं, पेड कोर्स को जरूरी नहीं समझते। तो मैं समझती हूँ कि जितना हम किसी भी चीज पर अपनी जान, अपना माल और अपना वक्त लगाएंगे उतने ही बेटर रिजल्ट्स हम पाएंगे। तो मेरी बहनों, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं और तालीम कुरान का ये कोर्स जो दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए लेकर आई है घर बैठे, तो मैं समझती हूँ कि कोई और एकेडमी इतना अच्छा आपको मौका नहीं देगी, इतनी अच्छी जो है इतने अच्छे अंदाज में ये चीज आपके सामने लेकर नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इससे फायदा उठाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। जज़ाकल्लाहु खैर शाबाश, आपके वर्ड्स बहुत मोटिवेटिंग थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह अपने कंफर्ट लेवल में अपने घर पर रहकर हम सीख सकते हैं। ये आपने कितने अच्छे से अपने टाइम मैनेज कर कैसे करना है बहुत अच्छे इससे समझाया है। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली सिस्टर ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आपको ये कोर्स जो है फिर अगले साल ही ओपन होगा, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 1 को ही ओपन होगा। तो ये साल आपका एक एक वक्त, एक एक लम्हा भी कीमती है, तो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और ग्रैब इट इमीडिएटली। जज़ाकल्लाहु खैर वंस अगेन शाबाश। जी महजबीन, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं दारुल अरकम में लेवल 1 में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कुरान पढ़ो और नमाज पढ़ो तो उसके मायने समझ में आते हैं, तो इस चीज से इंटरेस्ट आता है। जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं, काफी मतलब ऐसा होता है कि हमारी ध्यान यहाँ आ जाता है, लेकिन जब से ये वर्ड टू वर्ड सीखना शुरू किया है ना, तो हर एक चीज में कुरान में भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि हम आयतें पढ़ते जा रहे हैं और हम इसकी तफसीर हमारे माइंड में चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो एक जो लज्जत है ना, वो लज्जत आती है कुरान पढ़ने पे, तो एक जो मजा है कुरान पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाह इतना फायदा हुआ है। अभी तो सिर्फ 5 पारा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो रिपीटेड वर्ड जब हम लोग पढ़ते हैं कुरान, तो वो रिपीटेड वर्ड से ना कुछ कुछ सेंटेंसेस समझ में आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत फायदा हुआ है। मैं भी वर्ड टू वर्ड पढ़ने से काफी डरती थी। इशात मैम ने समझाया कि यही वक्त है, अगर आज नहीं कर पाए तो फिर आगे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सोचते कि हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप ये साथ साथ आप लेके चलेंगे ना, आपके वक्त में भी मतलब बरकत हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सकेंगे। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं इतना डरती थी वर्ड टू वर्ड करने से कि मैं सिर्फ तफसीर ही करूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रुप टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है। और उन सारा मैम का मतलब इतने अच्छे लेक्चर्स होते हैं ना कि वो लेक्चर से 1 से 2 बार आप सुन लीजिए, वो ऑटोमेटिकली काफी कुछ चीजें आपके दिमाग में रह जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर नजरीन, ट्रूली और एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। आपके छोटी बच्ची होते हुए भी, आपका घर संभालते हुए भी आप ये कोर्स कर रहे हैं। अल्लाह ने डेफिनेटली आपको चूज किया है इस काम के लिए और आप आगे भी पहुंचा रहे हैं। आपने कितनों को इनवाइट किया है ये जर्नी को समझने के लिए। कुरान की जो लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स है ये। जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन नजरीन। फौजिया, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खैरियत से सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अपने हालात में खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रुप फर्स्ट की हूँ, फौजिया बेगम। अल्हम्दुलिल्लाह सूरे 4th जुज़ कंप्लीट हो गए हैं। मैं सूरे निसा आयत नंबर 7 में विरासत के बारे में बयान किया गया है। मैं ये तालीमुल कुरान ज्वाइन होने से मुझे बहुत कुछ मालूमात हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि विरासत में क्या है, तकसीम कैसे होती है, किसका हक है और मीरास क्या है, इंसान की फौत के बाद अदा किया जाता है, वो मालूम हुआ इसे। बहुत सारे चीजें ऐसे मालूम हुई है जूस लेवल, जूस 4th में कि हम अपनी जिंदगी में कुरान क्या है कुछ नहीं, पहले तो कुछ भी ऐसा मालूम नहीं था। फिर ये तालीमुल कुरान ज्वाइन होने से मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी मैं ऐसा सोच रही थी कि मैरिड हो के मैं ये कैसा कर सकूंगी, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कैसा कर सकूंगी, पर फर्स्ट में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आसानी अल्लाह ताला पैदा करे। क्यों? अल्लाह के कुरान है, अल्लाह से जुड़ने से मेरी जिंदगी में बहुत आसानियां हुई। और मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, सास ससुरे हैं, और इसमें मैं कैसा टाइम निकालूं बोल के सोचती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से टाइम निकल रहा है मेरा। और इसमें मैं 1 घंटा देती हूँ रोज, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में मैं सुनती भी हूँ, नोट्स भी बनाती हूँ और मेरे घर वालों को भी मैं बताती हूँ कि मैं बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह तुम ये ज्वाइन कर रहे हो। उन लोगों भी मेरे को अंडरस्टैंड हो कि मुझे टाइम भी अंडरस्टैंडिंग से, तो मुझे बहुत सारे आसानियां हुए। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फौजिया फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस। आप डेफिनेटली आपके जॉइंट फैमिली के साथ आप 1 घंटा दे रहे हैं रोज। अल्लाह आपके वक्त में बरकत दे। और मैं किचन में भी जाती हूँ तो मैं मेरा फोन लगा के मैं थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेती हूँ, और मैं कुछ भी ऐसा तरकारी चुन रही हूँ तो तभी भी करती हूँ मैं। और उसमें जो वर्ड रहते हैं पेपर पे लिख के मैं वो चलते फिरते कुछ काम करना है, कुछ जो भी घर का छोटे मोटे रहते हैं उस पे नजरअंदाज, तो ये वर्ड मुझे आसानी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में। अल्लाह सबको आसानियां पैदा करे। ऐसा जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आपके इतने अच्छे आइडिया शेयर करें, आप कैसे हमको अपने आप को हम लर्निंग कैसे करवा सकते हैं। There is a will, there is a way। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको अल्लाह ने चुन लिया है इस महफिल में ज्वाइन करने के लिए, तो डेफिनेटली आप जब रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को तो ये चेंज महसूस करेंगे। और जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन फौजिया। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं कुशिफत दारुल अरक़ाम अकेडमी की स्टूडेंट हूँ, लेवल 1 से हूँ। और मैं जुज़ 5 चल रहा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह 4 तक हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का, ये तालीमुल कुरान कोर्स ज्वाइन करना। इनिशियली मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज मेरा बच्चा है 1.5 साल का, तो मुझे लगता था कि शायद मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मैं सोची पहले तफसीर करूंगी।
फिर जब मेरी बात हुई मैम से और मेरी लीड से, तो लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं तालीम हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी आप ज्वाइन करें। तो मैंने वो लोगों की सिर्फ बात पर मैंने इंस्पायर होके वो लोगों के एक्सपीरियंसेस से मैंने ज्वाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई फील वेरी गुड। इट्स बीन ए 1 ईयर एंड इतनी तब्दीली आई है मेरी जिंदगी में ये कोर्स की वजह से, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है फायजा मैम ने। आप जब लेक्चर सुनेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितना बेहतरीन तरीके से इसको किया है एक्सप्लेन। एंड और इम्पोर्टेंट बात ये मुझे अच्छी लगी कि इसकी ये जो ग्रुप्स बनाए हैं, ये जब हम कोर्स में रजिस्टर करते हैं सेपरेट ग्रुप्स बने, तो वी गेट टू मीट सो मेनी वुमेन जो अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है लाइफ के। वी गेट टू मेक फ्रेंड्स एंड वी गेट सो मच इंस्पिरेशन। ये एवरी जो उसके बाद फिर लाइव सेशन जो होता है वो भी बहुत बहुत अमेजिंग होता है। and you get to meet so many, make friends and everything. ये भी बहुत अच्छा part है about this course, and there's so many things कि आप सीखते हैं। like if I start telling कि क्या क्या चीजें मैंने सीखी हैं after taking this course, it will take lot of time, but मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अबाउट इन आवर लाइफ जो एक है टॉपिक हमारी निकाह एंड तलाक की, जैसे इफ वी टेक एन एग्जांपल कि ये पढ़ने के बाद इसकी तफसीर आई वाज ऑस्ट्रक, लाइक आई हैड गूज़बम्स कि कि हम इतना अनजान थे कि इसके बारे में कि इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड वी डोंट नो, ब्रीफ में भी वी डोंट नो कि निकाह का क्या अहकामात हैं, कि कब किस हाल में कैसे होता है निकाह, फिर तलाक कैसे होता है। ये तलाक एंड निकाह हमारी जिंदगियों में इट्स बीन सो मच इम्पोर्टेंट, बट स्टिल वी आर नॉट अवेयर, एंड इट इज वेरी सैड कि स्पेशली वी लाइक मुस्लिम्स इन आवर कम्युनिटी कि हम बहुत अनजान रहते हैं काफ़ी चीज़ों से। बट आई थिंक ये कोर्स एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग कोर्स है एंड इट गिव्स यू सो मच इंसाइट। आप खुद ये कुरान भी सीखते हैं एंड यू लर्न अबाउट योरसेल्फ आल्सो, यू डिस्कवर योर ओन स्ट्रेंथ, योर ओन, आप अपना खुद का भी एक जायजा लेते हैं एवरी नाउ एंड देन। आप सोचते हैं कि आपका कहाँ सही है कहाँ गलत है, सो वो भी बहुत मोटिवेशन देता है आपको। I don't want to take more time. Thank you Nishat ma'am, Jazakallah khairan, मेरे को opportunity देने के लिए to share my experience. Alhamdulillah. Very happy, dear. Jazakallah khair for sharing your experience. Definitely you have inspired many. Having a small kid is not easy, or being in a foreign country, खुद अपने काम करते हुए कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, hats off to you, और जज़ाकल्लाह खैर for sharing such a very good experience आपका। may Allah bless you always. जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जी, I would like Mehtab to share her experience. Mehtab? Are you there? पता नहीं, उनका नेटवर्क कुछ सही नहीं होगा, वो जब ज्वाइन करेंगे शेयर करेंगे। एंड जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और मैं अभी जो भी यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, प्लीज अपना आपके अगर कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं इस कोर्स के बारे में, कैसे होगा, हाउ यू आर सपोज टू शेयर, या कैसे आप टीम में असाइन करेंगे, कैसे अपना कोर्स करेंगे, इफ एनीबडी हैज अ डाउट प्लीज या फिर आप शेयर कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेहताब, आप शेयर कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस। सबसे पहले अहलन व सहलन मरहबा for every sisters, those who all have joined with us in this amazing program, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है।
जो मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें यहाँ पे जो बैठी हैं सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे ईमानों को और भी मुज़य्यन और हलावत वाला बना दे इंशाल्लाह। ये जो दारुल अरकम एकेडमी से तालीमुल कुरान का जो कोर्स है ना, ये कोर्स में मेरे को एक दो चीजें ऐसी क्लिक करी, जैसे कि सूरतुल आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला बोलता है कि बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, यानी कि बल्कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारा वो सबसे बेहतरीन मददगार है। क्योंकि मैं तालीमुल कुरान की स्टूडेंट जो लेवल 1 से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह निशत मैम और तस्मिया जो सिस्टर है वो हमारे लीडर। एक्चुअल से मेरा एक्सपीरियंस ये है, आई एम अ सिंगल मदर एंड आई एम वर्किंग वुमन। तो आपका आवाज बहुत धीरे हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब लोगों का अहलन व सहलन मरहबा इस्तकबाल करती हूँ इस तालीमुल कुरान लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। अभी आप जब आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे ना, आप वर्किंग वुमन हैं, तो वहां से नहीं आ रही थी, आप शेयर कर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। आई एम द सिंगल वुमन एंड प्लस आई एम द वर्किंग वुमन, तो भी करना मेरे को पड़ता है। मैं असल में तालीमुल कुरान में ज्वाइन इसलिए हुई थी कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीखूं, ताकि मुझे मालूम हो कि जो रब हमसे बात कर रहा तो हमसे ही ना अल्लाह ताला बात कर रहा, तो फिर जो अल्लाह ताला बात कर रहा तो हमको मालूम ही ना हो तो फिर हम कैसे अपने आप को सही इन द राइट पार्ट ऑफ द वे इन द लाइफ कैसे चला सकेंगे। तो इसलिए मैं ये कोर्स को ज्वाइन करी। ज्वाइन करने के बाद मेरे को इसमें से क्या बोलते, जैसे कि मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम लीडर्स का जो वर्क रहता ना इसके अंदर, उमसारा मैम का तो है ही है कमालात, अल्लाह ताला हर एक को जज़ाए खैर दे। तो जैसे जैसे हम अपना वक्त निकालते, जो वर्किंग वुमन समझते कि हम ये कुरान का काम नहीं कर सकते, हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं लिख सकते, हम नहीं याद कर सकते, ये तमाम हमारे अंदर ऐसी जो बातें हैं जो क्लिक होती है शैतान को पहचाने बगैर, बस हम अपनी परेशानी को सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते। लेकिन दिस वे ऑफ द स्टडिंग, जैसे कि बहुत इजी वे में मिनिमम 1 आवर या हाफ एन आवर बाय डे अगर हम निकालते हैं पर डे, तो बहुत आसानी से हम कुरान को भी समझ पाएंगे, जो कि ट्रांसलेशन के साथ, और उसी के साथ साथ अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहा है, क्योंकि ये हिदायत लिन्नास जमिया, ये पूरी जहान वालों के लिए हिदायत है ना, तो सुभान अल्लाह हमारी हिदायत तो इसी से हो सकती है। ये तो जब मैं आई आल इमरान के जो जिस नंबर 3 में मैं जब आई, तो वहाँ पे उमसारा मैम ने एक ऐसा बात बयान किया जो ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर। वो बात मैं जब सुन रही थी, वो तफसीर में नोट कर रही थी, तो मुझको ऐसा फील हुआ, क्या ऐसे ही नहीं कि दारुल अरकम एकेडमी एज ए मायदा, जैसे कि आसमान से जन्नत से अल्लाह ताला ने दस्तरखान सजाया ईसा अलैहिस्सलाम के कौम के लिए, तो क्या ये दारुल अरकम में भी ऐसा ही सब कुछ नहीं मिल रहा? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर कोर्स मिल रहा, वर्ड टू वर्ड मिल रहा, और उसके साथ हमारे पास लीडर्स ऐसे हैं कि हम अगर रात को 10 बजे भी आए और कहें कि अब हम फ्री हैं, तो बेचारों तो ऐसे भाग भाग के आते हैं हमको सुनने के लिए। ये मेरे को बहुत ज्यादा दिल को क्लिक करता। और उमसारा मैम का तो बस हमारे पास जब भी वक्त हो वीकली इतनी चाहते देते कि जितना हम बगैर मेहनत के कर सके, अपने ऊपर बर्डन ज्यादा नहीं डाल सकते। तो ऐसा बताते कि कुरान तुम्हारे लिए ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा हम और गम, बल्कि कुरान तुम्हारे लिए बोझ नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा महसूस करो कि तुम उसके पास आओ आओ और आओ और आओ, क्योंकि इससे ही तुमको सोल्यूशन मिल सकता है। तो ऐसा चलते चलते तिब्ब नबवी का कोर्स भी मैं ज्वाइन, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को भी बताया गया था ना कि ऐ मूसा तुमने जो चिड़िया है देखो कि चिल्लू भर उसने अपने मुंह में पानी लिया, उतना इल्म भी तुमने हासिल नहीं किया। तो ऐसी हिरिस बहुत ज्यादा होना चाहिए इंसान के अंदर कि हम एक में जमे हैं तो और मालूम करें कि अल्लाह ताला का क्या इल्म है। तो ये हिरिस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से रहती है मेरे अंदर कि मैं ज्यादा मालूम करूँ और मालूम करूँ।
तो तिब्बे नबवी कोर्स में मैं ज्वाइन करी, तो वो कोर्स मेरे को इतना पसंद आया। बस उसका जो इंट्रोडक्शंस देते रहे तो मैं सोची कि मैं अकेली थी, मेरे साथ मेरी बेटी को भी मैंने ज्वाइन किया। तो मेरी बेटी को मैं ज्वाइन की, तो ये तिब्बे नबवी कोर्स से मुझे फायदा ऐसा हुआ कि मेरे अम्मी को जो यानी कि ये कराना था एंजियोग्राम, जो मैम ने इसमें बयान किया मेडिसिन को लेकर, जैसे एक हदीस बयान की अल्लाह के रसूल हलाल और हराम को लेकर, कि हलाल और हराम की तमीज के बाद तुम ना दवाइयों की तरफ ज्यादा तवज्जो करें, यानी यू हैव टू बी ब्रेव इन द मेडिसिन, कि दुनिया में दवाइयों की तरफ ज्यादा तवज्जो करने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। ये बात मुझे असल मालूम ही नहीं थी, मैंने तो सारा मैम के जबान से ही ये बात सुनी, फिक्र इलाही, कि अल्लाह ताला ने उनके जरिए से इतना बड़ी बात मुझे मालूम कराया। तो मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके गई, तो वहाँ पे देखी कि कितना बड़ा स्कीम चल रहा वो हॉस्पिटल में। बस अल्लाह का इतना शुक्र अदा करी, या अल्लाह जो मायदा तूने सजाया है वो दारुल अरकम में, उसका तूने मुझे हिस्सा बना के बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और इसी से मेरी बेटी, जब मेरी बहन जो है विदाउट चिल्ड्रन तकरीबन 12-13 साल से वो सफर करती है, तो उसने मेरी बच्ची को पाला। मेरी बच्ची खुद उसको कहती है कि माई तू देख, माई आप देखो कि मैम ये बोले कि तुम ना रुकिया करो, तुम ना हिजामा करवाओ, तुम ना बकरा डाल के डेली सुनो, तो तुमको भी औलाद होगी माई। तो उस वक्त यकीन मानिए कि मैं ऐसा फील करी कि जो मैं चाहती थी ना, कि हम क्या चाहते कि हम जो अपने लिए पसंद करते अपनी औलाद के लिए, तो वो मुझे नजर आया, लेकिन जरिया बना अल्लाह के फजल व करम से दारुल अरकम, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिससे मेरे टीम लीडर्स ने मुझ पे और एक बड़ा एहसान कर दिया कि मुझको टीम लीडरशिप की इसमें ज्वाइन करा के, तो वो तो मैडम के साथ यानी मैम के साथ रूबरू वीकली वंस होता है, तो उसमें ऐसा बूस्टर दिया जाता। वहां पे भी मैं गौर करी, जो कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 129 के अंदर अल्लाह कहता है अल्लाह के रसूल को, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, तुम इनके नफ्स की तज़किया करो, जैसे कि मैम तालीम देते हैं कुरान की, फिर जो टीम लीडर्स को ना अल्हम्दुलिल्लाह तज़किया नफ्स करते हैं। तो इस पर ये बात मेरे को बहुत बरसों से खाई जा रही थी कि सॉरी फॉर टेकिंग सो मच टाइम माय डियर सिस्टर्स, बट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव अचीव्ड इन 1 ईयर। सुभान अल्लाह। तो इससे ऐसा बताया मैम कि सब्र इज नॉट अ बर्दाश्त, यानी कि तुम सब्र बर्दाश्त के लेवल पे नहीं करना, बल्कि सब्र के अंदर पॉजिटिव वे में तुमको हैंडल करना है। उसी दौरान कुछ ऐसा मसला मेरे पास आया था, तो पॉजिटिव वे में मैंने उसको हैंडल किया। तो मैं देखती हूँ कि कुछ भी सामने से कुछ भी बोलते ना दुश्मना की का ऐसा समथिंग इन देयर हार्ट विथ मी, यानी कि हसद करना, यानी तो मेरे से नाराज होना, वो पर्सन मेरे से कुछ भी ऐसा नहीं करे। दिस इज द टीचिंग ऑफ द अल्हम्दुलिल्लाह जरिए है उन सारा मैम, कि तुम लोग ना बहुत पॉजिटिव वे में भी सब्र करते हुए तो ये है जो कि दारुल अरकम के साथ हमको मिल सकता है इंशाल्लाह। आई विल सजेस्ट टू ऑल माय सिस्टर्स दोज हु आर नॉट इवन लर्न अबाउट द कुरान तालीम, प्लीज आप भी इसमें ये करिए और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी इसमें लाने की कोशिश करिए। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर, मैम गिविंग मी अ अपॉर्चुनिटी टू टेल अबाउट द दारुल अरकम। जज़ाकल्लाहु खैर साहब, आप डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है, सिंगल मदर हैं, वर्किंग वुमन रहकर भी आप ये कर रहे हैं, और आप सिर्फ तालीमुल कुरान लेकर खामोश नहीं रह गए। बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं हमारे दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी के जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल करने के लिए डेफिनेटली देयर इज नो लिमिट, वी कैन से लाइक हर एक चीज हम इतने अच्छे तरीके से मैम समझाते हैं इजी वे में लेने के लिए, और हमें बहुत सारे हमारे अंदर जो चेंजेस, जो आप सब्र के बारे में बोल रहे हैं, तब जो है सब्र का असली मायना ही हमें समझ में आया आफ्टर लर्निंग फ्रॉम सारा। जज़ाकल्लाहु खैर वंस अगेन साहब जी। मैं जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर, मतलब जो स्टूडेंट्स नहीं है दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी के जो ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर, आई वांट टू आस्क
if you have any questions which we can answer. अगर आपको कोई अभी भी डाउट है किस तरह से ये कोर्स होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ आपको दिल में कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क क्वेश्चन, आपको हम आंसर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आई अज्यूम एवरीबडी हैज गॉट देयर आंसर्स। आप सबको मैं अभी मौका दे रही हूँ, रजिस्टर योरसेल्फ नाउ। प्लीज चैट बॉक्स में तकिया यहाँ का ये डालिए, दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी के बारे में लिंक डालिए। जी जी, और चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डालिए, जो डीए रजिस्ट्रेशन का ग्रुप है। जी जी, those who want to join now can join in that group। और आप कौन कौन रजिस्टर करवा रहे हैं प्लीज अपना अपना फोन नंबर और नाम डालिए ग्रुप में, यहाँ पर चैट बॉक्स में। ये मौका आपको फिर नेक्स्ट ईयर तक नहीं मिलेगा, प्लीज एक लम्हा भी मत गवाइए और प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एसएप राइट नाउ। आप यहाँ पर आए हैं तो आपको शैतान रोकता होगा, दिमाग में ख्यालात डालता होगा कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अब नहीं, बच्चे छोटे हैं, नहीं जॉइंट फैमिली में है, नहीं मैं थोड़ा तबीयत ठीक हो जाऊं, नहीं मैं थोड़ा पढ़ लूं, मैं थोड़ा एज हो जाऊं, या फिर मैं थोड़ी उम्र गुजारे बाद में करूंगी, मैं अभी नहीं तो कभी नहीं। सिस्टर, यू हैव टू जॉइन नाउ। चैट बॉक्स में शेयर किया है दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी के बारे में, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर किया गया है। तो प्लीज अगर आपको और कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ आपको ये करना है तो प्लीज ज्वाइन करिए। लतीफा शेख वांट्स टू स्पीक। लतीफा जी, बात करिए आप। Jazakallah khairan, Nishat, for giving me the opportunity to just say a few words. मैं ज़्यादा time तो नहीं लूँगी, but I would just like to say to all of you who are listening that Allah Ta'ala has given this opportunity to you, and अगर आप join नहीं करते तो आपको कहीं ज़िंदगी में मलाल न रहे कि मुझे मौका मिला था और मैंने join नहीं किया, because you never know what can happen to anybody at any time of point in life। कि हमें लगता है कि हम बहुत जिएंगे, या you know we are going to live for long, but what I have understood is इंसान आज है कल नहीं। तो if this is an opportunity which is knocking your door, then I think all of you all should join, and you all should not think a second about कि मैं क्या करूँगी, कैसे manage करूँगी, because my personal experience is कि I have a neighbor who had joined earlier than me, and I was working then. Okay, so she just told me, Shabana, you can do this and you just join. So then I just asked her that, you know, Bhabhi, do you think I'll be able to do it? So she just said, you join, that's it, nothing else. So मैंने second thought नहीं सोचा, मतलब कि मैं करूँगी या कैसे करूँगी and whatever, because I was also working then. I've quit now though, but at that point of time I just listened to her, and मेरी हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला जब से अल्लाह ताला ने हिदायत दी है that I should be a part of studying the Quran, and you know Allah should make you know whatever potential, जो भी मुझे मेरी सलाहियत है अल्लाह ताला ने जो दी है मुझे, that has to be used in the way of Allah. So I was always praying to Allah, Alhamdulillah. Through this opportunity, I just like, you know, when I listened to that friend of mine, she just told me, and I paid the amount to her and I joined, and I didn't even think कि मैं कैसे manage करूँगी. So I am into too many things, you know, but I still somehow I manage it. Alhamdulillah. It is only by the will of Allah, and you know Allah Ta'ala only makes me do all this. So all I want to tell each and every one of you is, the opportunity is knocking your door, and I have been listening the entire conversation. कि आपको जो भी doubt है, please do not feel
scared और आपको कोई डर हो या शाइनेस हो कि मैं ये सवाल पूछूंगी तो what others are going to think, nothing, absolutely. Please feel free and ask question, and this opportunity is knocking at your door, so don't leave this opportunity. क्योंकि ये खुदा न खास्ता कब क्या हो जाए हमें नहीं पता. It's like, you may feel that I will do 10 years down the line or 1 year down the line, 6 months down the line, but you never know whether we may be there or no. So just think about it. Maybe Allah Ta'ala has given you this opportunity, and I think all of you should join. Okay, so this is my humble and earnest request to each and every one of you. यहाँ जो भी participant जिसने join किया है, if they are not able to speak, at least they can chat in the chat box and give a response to Nishat and to other leaders who have taken this opportunity to tell you all everything about Talim al-Quran. So it's my humble request that don't leave this opportunity, and Allah Ta'ala is giving you this, so just grab it and inshallah you will do it. Just go for it. I'm telling you, it's not going to be difficult. I'm telling you, Allah Ta'ala says in the Quran कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे हर काम आसान कर दूंगा. So we have to have tawakkul in Allah, and inshallah Allah will make our part easy towards acquiring the knowledge, because हमें ये समझना है कि हमें चाहे कितना भी लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, busy हैं, my kids are there, my children are there, my in-laws are there, my this and my that and everything, but the world is created by Allah, and Allah Ta'ala has given us a rule book to follow. That rule book, how we have to live our life in this world, and eventually we are going to get back to Allah. And then when Allah Ta'ala is going to question you कि तालिम al-Quran का आपको opportunity आया था लेकिन आपने नहीं लिया, तो फिर आप क्या जवाब दें? So I think all of you should join and not even think twice about it. Inshallah, Allah Ta'ala will definitely guide you all and give all the facilities and make your path easy towards acquiring knowledge. So this I won't make. I think I've taken enough time. So without wasting much time, I will just take your leave, all of you. So humble request. Latifa, for sharing your experience or inspiring and motivating everybody to join the course. Hanan Bhatt, आपको ये पूछना है ना कि what will be the schedule and will we have classes 7 days a week? आप जब ज्वाइन करेंगे तालिम al-Quran का कोर्स तो आपको एक टोटल एक्सेस दिया जाएगा और हर वीक आपको 2 या 3 लेक्चर्स, दैट इज हाफ एन आवर के लेक्चर्स होते हैं, मैक्सिमम 40 मिनट्स, 2 या 3 लेक्चर्स पोस्ट होंगे और वो आपको अपने टाइम के हिसाब से, कन्वीनियंस ऑफ योर टाइम, कंफर्ट ऑफ योर होम, वहां से आपको सुनना है और आपको नोट्स बनाना है उसके एंड क्या बोलते हैं वो सब प्रिपेयर करना है एंड यू विल बी असाइन टू अ टीम. तो आपकी जो टीम है आपको टीम लीडर गाइड करेंगे और वो आपको एक वीकली रिविजन सेशन रखेंगे जहां पर आपकी पूरी टीम ज्वाइन करेगी और अपने आप से डिस्कस करेंगे, अगर कुछ डाउट्स हैं तो क्लियर करेंगे और वो करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे को लर्न करने में इंशाल्लाह. और आफ्टर ईच जुज जब आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा आपका एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन होगा इंशाल्लाह उस्ताद तारा के साथ, जहां पर आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब ग्रुप में होंगे तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा वहां पर भी उस्ताद तारा है जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं. आई एम टेलिंग यू, हर क्वेश्चन, शी नेवर मिसेस इवन वन क्वेश्चन. शी इज एक्सेसिबल एनी टाइम टू यू. Not only your team leaders, even Ustad Sara is accessible to you very easily. So, Jazakallah khair Hanan Bhatt for sharing your number. We will get back to you inshallah. Atia, what is the time? And it's on Zoom live. Live session सिर्फ interactive session होगा और आपके जो team leader जो आपके convenience के हिसाब से time set करेंगे वो weekly 1 session होगा इंशाल्लाह ताला और रिविजन. जी आतिया, आप आपका नंबर शेयर कर सकते हैं यहाँ पर so that we can get back to you inshallah. And jazakallah khair for
asking questions. It might have answered many others also. Jazakallah khair everyone for giving your precious time and joining this meeting. I hope it has benefited you. और जो भी यहाँ पर हैं और जो इंक्वायर भी कर रहे हैं, प्लीज आगे पहुंचाइए इस इल्म के बारे में सीखने के लिए जो दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आप सब आगे पहुंचाइए और मेक श्योर यू ऑल्सो मेक अदर्स ज्वाइन और जो आप सीख रहे हैं दूसरे को भी सीखने का मौका मिले. So Jazakallah khair everyone. If there is no other query or question, we can end the meeting right now. जी Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.